بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدت سے تنہائی میں رہنا پسند کرنے لگے تھے۔ زیادہ تر ہرا کے غار میں وقت گزارتے، ہفتوں گھر نہ آتے۔ ایسا لگتا تھا گویا حضور کو دنیا سے نفرت ہو گئی ہے۔ حضور بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام دیش میں تجارت کے لیے تشریف لے جاتے رہے۔ جوانی میں حضرت خدیجہ کی تجارت کا مال لے جاتے تھے۔ آپ سچے اور امانت دار تھے، کاروبار میں معاملہ اتنا صاف رکھتے تھے کہ کسی کو بھی کسی قسم کی شکایت نہ ہوتی۔ سب خوش رہتے جو ایک بار آپ سے معاملہ کر لے، آپ کے اخلاق کا قائل ہو جاتا۔ صرف مکہ ہی نہیں، یمن، بصرہ، شام کے ملک میں بھی حضور جہاں جہاں تشریف لے گئے، جن لوگوں نے آپ سے معاملہ کیا، سب آپ کی تعریف کرتے۔ اکثر لوگ آپ کے ساتھ تجارت کا مال کر دیتے۔ آپ پوری ایمانداری سے مال بیچتے اور پوری قیمت مالک کو دے دیتے۔ اس سے آپ کی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، اچھے اخلاق کی عام شہرت ہو گئی۔ یہ شہرت اتنی بڑھی کہ دنیا نے آپ کو امین تاجر کا لقب دیا۔ ہر جگہ آپ اسی نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ وعدے کے اس قدر سچے تھے کہ جو وعدہ کر لیتے، ہزاروں مصیبتیں اٹھانے پر بھی اسے پورا کرتے۔ آپ کی دیانتداری پر لوگوں کو اتنا بھروسہ تھا کہ نقد روپیوں کے علاوہ قیمتی چیزیں بھی آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی لے جاتے۔ ہر چیز اپنی اصلی شکل میں ملتی۔ آپ کی اس دیانتداری اور امانتداری کی شہرت عام ہو گئی۔ حضرت خدیجہ نے بھی سنا، تجارت کے کاموں میں امتحان بھی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق، پاک بازی، شرافت، دیانت و امانت اور شرافت کا ان پر ایسا اثر ہوا کہ خود نفیہ نام کی عورت کے ذریعے شادی کا پیغام دے دیا۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بہت شریف خاتون تھیں۔ ان کا خاندانی سلسلہ پانچویں پیڑھی سے حضور کے خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بیوہ تھی، بہت شریف اور پاکیزہ اخلاق تھیں۔ لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے۔ دولت مند اتنی تھیں کہ جب مکے والوں کا قافلہ تجارت کے لیے روانہ ہوتا تو اکیلا ان کا سامان تمام قافلے کے سامان کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں ان سے بڑا تاجر مکے میں کوئی نہ تھا۔ جب انہوں نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے منظور کر لیا، چنانچہ نکاح ہو گیا۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور 500 درہم مہر قرار پایا، کیونکہ حضرت خدیجہ مالدار تھیں، خوبصورت اور پاکیزہ، اور عرب کے اونچے خاندان سے تھی، اس لیے اکثر لوگوں نے ان سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تھا، پر انہوں نے تمام درخواستیں رد کر دی تھیں۔ شاید ان کا نکاح کرنے کا ارادہ تھا ہی نہیں، پر حضور کی امانت و دیانت اور سچائی اور اچھے اخلاق کی شہرت سن کر ایسی نچھاور ہوئی کہ خود نکاح کا پیغام دے کر نکاح کر لیا۔ نکاح کے وقت حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کے 2 لڑکے قاسم اور طاہر پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ قاسم اس حد تک بڑے ہو گئے تھے کہ سواری وغیرہ پر سوار ہو سکتے تھے۔ قاسم کی وجہ سے آپ کا لقب ابو القاسم مشہور ہوا۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی 4 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہوئی۔ ان میں حضرت رقیہ سب سے بڑی تھیں۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص بن ربس سے ہوا تھا۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا تھا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت رقیہ حضرت عثمان سے بیاہی گئیں، اسی وجہ سے حضرت عثمان کا لقب ذوالنورین تھا۔ حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی تھیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کے 3 بیٹے عقیل، جعفر اور علی تھے۔ بال بچے دار تھے، تنگی کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ ایک بار جب قحط پڑا اور اب طالب بڑی تنگی میں گرفتار ہو گئے تو حضور اپنے چچا عباس سے فرمانے لگے کہ چچا ابو طالب تنگی کی زندگی جی رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ ایک لڑکے کو آپ لے آئیں اور ایک کو میں لے آؤں۔ حضرت عباس نے منظور کر لیا۔ دونوں ابو طالب کی خدمت میں پہنچے اور ان سے اپنی خواہش ظاہر کی۔ ابو طالب نے کہا، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، جعفر کو عباس لے جائیں اور علی کو تم لے جاؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر کو عباس لے گئے اور حضرت علی کو
हजूर ले आए और उनकी परवरिश करने लगे। हजरत खदीजा के एक भतीजे हकीम बिन हिजाम थे, दौलतमंद आदमी थे। वह एक ईसाई गुलाम जैद बिन हारिस को खरीद लाए थे। उन्होंने जैद को हजरत खदीजा को भेंट कर दिया। हजरत खदीजा ने हुजूर को भेंट कर दिया। आपने उसे अपने अजीज की तरह अपने पास रख लिया। कुछ दिनों के बाद जैद के बाप हारिस और चचा काब उसे लेने के लिए आए और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। निहायत आजिजी से दरखास्त की कि जैद को या तो आज़ाद करके उनके साथ कर दिया जाए या उनकी मुनासिब कीमत लेकर आज़ाद कर दिया जाए। आपने फरमाया, अगर जैद आपके साथ जाने पर तैयार हो तो उसे आज़ाद कर दूंगा। चुनाचे जैद को बुलवाया गया। उनके बाद हारिस ने उनसे पूछा, जैद क्या तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो? जैद ने जवाब दिया, नहीं। हारिस को बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने पूछा, किस वजह से? जैद ने जवाब दिया, अगरचे मैं गुलाम हैं, मगर मैं एक ऐसे बाखलाक और मेहरबान की खिदमत में हूँ जिसकी इनायत ने मेरे दिल में घर कर लिया है और मैं उनसे जुदा होना नहीं चाहता। हारिस को गुस्सा आया। उसने कहा, बदबख्त, क्या तू आज़ादी को गुलामी पर तरजीह देता है? जैद ने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी पर हज़ारों आज़ादियाँ कुर्बान हैं। मैंने उनमें ऐसी बातें देखी हैं कि मैं सारी दुनिया पर उन्हें तरजीह दूंगा। हारिस और उसके चचा काब ने बहुत समझाया, पर वह किसी तरह वहाँ से जाने पर राजी न हुए। मजबूरन दोनों खामोश हो गए। हुजूर उठे और जैद और उनके बाप और चचा को साथ लेकर खाना काबा में आ गए और यह ऐलान किया कि लोगों, गवाह रहो कि आज मैंने जैद को आज़ाद कर दिया है और उसे अपना बेटा बना लिया है। जैद के बाप और चचा इस बात से खुश हो गए और जैद को आपके पास छोड़कर चले गए। आपका रसूख हर तबके के लोगों में था, रईस, अमीर, गरीब, फकीर, सिपहसालार, सिपाही, गरज की सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते और सब आपसे मिलते थे। लेकिन आपके खास ताल्लुक खास लोगों से थे और ज्यादा अबू बकर बिन कहाफा से ताल्लुकात थे। अबू बकर निहायत खूबसूरत थे। खूबसूरती की वजह से आपका लक़ब अतीक पड़ गया था। आप बीला बनु तमीम में से थे। खून बहा और तावान का फैसला करने के लिए आप हाकिम बनाया जाया करते थे। आपका फैसला तमाम कबीलों को बेचुन व चरा मानना पड़ता था। आप बहुत अमीर थे। मिस्र व शाम को तिजारत की गरज से जाया करते थे। तमाम कबीलों में आपका असर व रसूख था। छठी पीढ़ी में आपका खानदान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से मिल जाता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान आपके दामाद थे। हज़रत उस्मान की नानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्लाह की सगी बहन थीं, जो हज़रत अब्दुल्लाह के साथ जुड़वा पैदा हुई थीं। इस तरह हज़रत उस्मान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीजात बहन के बेटे थे। निहायत मालदार, बड़े सखी, बड़े शर्मीले थे। आपसे भी हुजूर के खास ताल्लुकात थे। इनके अलावा अबू सुफियान, खालिद, अबू जहल, सुहेब वगैरह से भी ताल्लुकात थे। हर कबीले का हर आदमी आपको इज्जत की नज़रों से देखता था। अक्सर लोग आपसी लड़ाई के वक्त आपको हकम करार देते थे, आपके फैसले को मानते थे। लेकिन जब से आप हिरा की गुफा में ज्यादा वक्त लगाने लगे थे, उस वक्त से आपने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था और जब से आप पर वह्य आनी शुरू हुई तो आप चुपचाप रहने लगे थे। हजरत खदीजा को आपकी खामोशी से बड़ी चिंता हो गई थी। किसी काम में दिल नहीं लगता था। हुजूर खामोश बैठे थे कि हजरत अली आ गए। हजरत अली आप ही के पास रहते थे, उम्र में बहुत छोटे थे। खामोश देखकर उन्हें कुछ कहने की हिम्मत न हुई। शाम तक हुजूर बैठे रहे, रात को खाना खाकर आराम किया। इसके बाद वह्य आती रही। एक दिन आप पहाड़ के दामन में बैठे हुए थे कि हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और उन्होंने वुजू किया। हुजूर ने भी इसी तरह वुजू किया जिस तरह हजरत जिब्रील ने किया था। फिर हजरत जिब्रील ने नमाज पढ़ी। उस दिन से हुजूर नमाज पढ़ने लगे। आप तन्हा नमाज पढ़ते थे। न कोई उस वक्त तक मुसलमान हुआ था, न नमाज पढ़ता था। पहले तो आप पहाड़ी पर नमाज पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे मकान पर भी नमाज पढ़ने लगे। हजरत खदीजा, हजरत अली, जैद आपको नमाज पढ़ते हैरत से देखा करते थे। वह्य के आने का सिलसिला जारी रहा। एक वह्य में आया और तुझको जो हुक्म दिया गया है
खोल कर कह दो। आप रब के इस हुक्म को सुनकर परेशान हो गए। आपकी परेशानी सही भी थी। उस वक्त सभी लोग गुमराही में पड़े हुए थे। खास तौर पर अरब का हर कबीला और हर आदमी मुहित था। बुत परस्ती आम थी। वाहिद खुदा अल्लाह को कोई जानता भी न था। फिर ऐसे सख्त और सरकश लोग थे कि बुतों के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार न थे। हजूर सोचने लगे कि तबलीग कहाँ से और कौन से लोगों से शुरू की जाए। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपने करीबी खानदान वालों को डराओ। वही ने तबलीग का रास्ता बताया। आपने तुरंत तबलीग शुरू की। सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा के सामने अल्लाह की तारीफ बयान की। हज़रत खदीजा बुतों की पूजा करती थी, मगर वह वर्का से सुन चुकी थीं कि हुजूर पैगंबर हो जाएं तो अजब नहीं, फौरन ईमान ले आईं। कुफ्र व शिर्क से तौबा करके मुसलमान हो गईं। हजूर को उनके मुसलमान होने से खुशी हुई। हुजूर तन्हा नमाज पढ़ा करते थे। अब हजरत खदीजा के साथ मिलकर पढ़ने लगे। एक दिन हुजूर और हजरत खदीजा नमाज पढ़ रहे थे कि हजरत अली आए। उस वक्त आपको सख्त ताज्जुब हुआ, अगरचे आप पहले भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख चुके थे, लेकिन हजरत खदीजा को कभी न देखा था। जब वह नमाज से फारिग हुए तो आप ने हुजूर से पूछा, आप दोनों क्या कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया, नमाज पढ़ रहे हैं। आपने हैरान होकर कहा, नमाज लेकिन सजदा बुतों को किया जाता है और आपके सामने कोई बुत न था। हुजूर ने फरमाया, बुतों को नहीं पूजते बल्कि खुदा अल्लाह को पूजते हैं। हजरत अली यह सुनकर हैरान रह गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह तो अजीब बात है, मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हुजूर ने फरमाया, अली मैं खुदा का रसूल हूँ। खुदा का पैगाम मुझ पर उतरता है। आओ तुम भी दीने हक में दाखिल हो जाओ। हजरत अली ने कहा, मुझे सोचने दीजिए। हुजूर ने फरमाया, अली अगर तू इसे कबूल कर ले तो रात तक उसे छिपाना, ताकि खुदा तेरे दिल में इस्लाम डाल दे। हजरत अली ने इस बात का इकरार कर लिया। जब रात गुजर गई तो हजरत अली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, मैं अब खुदा के दीन में दाखिल होना चाहता हूँ। हुजूर ने तुरंत कलिमा पढ़वाकर मुसलमान कर लिया और हिदायत की कि अभी अपने इस्लाम को किसी पर जाहिर न करें। हुजूर चाहते थे कि धीरे धीरे कुछ लोग मुसलमान हो जाएं, तब एलानिया तबलीग करें, और हुक्म भी यही आया था कि पहले घर वालों को खुदा से डराओ। एक दिन आप बैठे थे कि हजरत अबू बकर आए। जब वह बैठ चुके तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर तुम मुझे क्या समझते हो? हजरत अबू बकर ने कहा, बहुत नेक और बहुत बाअखलाक और सच्चा भी। हाँ, सच्चा भी। मैंने कभी गलत बात कहते हुए आपको न सुना। अगर मैं यह कहूँ कि मैं खुदा का रसूल हूँ और मुझ पर वही उतरती है तो तुम यकीन करते हो? बेशक यकीन करूँगा। अच्छा सुनो, मुझ पर वही उतरती है। मैं खुदा का पैगंबर हूँ और खुदा का हुक्म है कि गैर अल्लाह की पूजा छोड़ दो। उसी को पूजो जिसने तुमको पैदा किया है और जिसके हाथ में फना और बका है। हजरत अबू बकर ने कहा, मैं उस अल्लाह पर ईमान लाया। आपको यह सुनकर बेहद खुशी हुई और हजरत अबू बकर को सीने से लगा लिया। थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर चले गए। हजरत जैद बिन हरीसा का ईमान लाना। कुछ दिनों के बाद ने जैद से कहा, जैद मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उसके भेजे दीन का प्रचार करता हूँ, तुम भी अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाओ। जैद बोले, मेरे मालिक मैं आपको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे आपकी बातों में जरा भी शक नहीं है। आप मुझे मुसलमान कर ले। हुजूर ने जैद को भी मुसलमान कर लिया। अब 3 बहुत ही करीबी लोग हुजूर पर ईमान ला चुके थे। दीन की तबलीग का काम बड़ी राजदारी, खामोशी और चुपके चुपके शुरू हुआ। लेकिन यह बात छिपने वाली कब थी? धीरे धीरे लोगों को मालूम होने लगी। सारे मक्का में चर्चा शुरू हो गई। कुफ्फारे मक्का ने सुना, सख्त नाराज हुए और खुलकर कह दिया कि जो कोई हमारे माबूदों की बुराई करेगा, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अगरचे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि हम तन्हा हैं, कमजोर हैं, मक्का वालों का मुकाबला किसी तरह भी नहीं कर सकेंगे, पर आप न डरे न घबराएं, बल्कि पहले ही की तरह तबलीग करते रहे।
यह एक ऐसी दलेरी की बात थी जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। एक अकेले आदमी का सारी कौम और पूरे मुल्क के मुकाबले में खड़े हो जाना बड़े दिलगुर्दे की बात थी, वह भी इस हालत में कि न आपके हाथ में तलवार थी और न तलवार में यह ताकत थी कि आप लोगों को डरा धमका सकें, न आपके पास आदमी थे कि कौम आपके आदमियों की धौंस खा जाती, न हुकमत थी जिससे लोग दब जाते, न दौलत थी कि कोई लालच में आ जाए। कहने का मतलब यह है कि कुछ न था। हाँ, अगर कुछ था तो अल्लाह पर यकीन था। इसी यकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेमिसाल हौसला पैदा कर दिया था। आप अल्लाह के भरोसे बराबर तबलीग में लगे रहे, मगर एलानिया नहीं, खुफिया तौर पर जो आपके पास आता, चाहे वह मक्के का हो या मक्के से बाहर का, आप उसके सामने भी अल्लाह का कलाम पढ़ देते, अल्लाह का हुक्म बयान कर देते। अगरचे शुरू में आपकी तबलीग का तरीका यही रहा, लेकिन इस्लाम और मुसलमानों का जिक्र घर घर होने लगा। इंशा अल्लाह सीरीज का अगला हिस्सा कल पोस्ट किया जाएगा। आप हजरात से इल्तेजा है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी दे।